Hello everyone. Today I hope you people are fine and good and safe. Today I'm going to start your first chapter, partnership final account, and in last lecture I gave the introductory lecture and we discussed the format, and now today I'm going to start the important adjustment of the final account. Okay, so I'm starting my PPT and presentations. So this is SY BCom SEM 3 and I am discussing partnership final account. First I am giving my introduction. I am Professor Zakira Matwankar from Sant Gadge Maharaj College of Commerce and Economics. I am assistant professor in accountancy department. Today I am going to start the adjustment. There are total 27 adjustment what I am discussing today, and this is the adjustment which belongs to the final account and their effects in trading, profit and loss appropriation and balance sheet. Why so? Now this is very important and necessary adjustment while we are preparing the final account. So before starting the final account, first we have to discuss some important adjustment. So today one by one I am going to teach you how many adjustments are there, what do you mean by this adjustment, and what will be the effect. So I prepare here the 4 columns. First is the serial number, second for the adjustment, यहाँ पर जो है आपके adjustments रहेंगे. Second जो third column आएगा हमारा, उसमें first effects मैं आपको बताऊंगी. जो first effects रहेगा that will be in profit and loss account, profit and loss appropriation and trading account. Now the second effect will be in balance sheet if any. So today we are discussing only adjustment, and in last lecture we discussed the format. Now the first adjustment is outstanding or unpaid expenses. Outstanding means the expenses which is not paid during the year. So what will be the first effect? If we are not paid, means we have to paid. So that's why we have to add this outstanding or unpaid amount to the concerned expenses in the debit side of the profit and loss account. And the second effect we have to pay, and that will not paid, that's why it should be our liability. So the second effect will be on the liability side separately. So we have to write in the liability side the outstanding expenses. Expenses must be whatever, your wages might be, your salaries, your printing and stationery expenses. So if it is unpaid or outstanding, you should add into the profit and loss account, and you have to show in the balance sheet is in a liability side, because we are not paid yet, so it should be your liability. Now the second adjustment is outstanding income. Sometime it's happened might be your income is not paid from the party, or it should not be paid during the year. So in the outstanding case we have to add to the income side. Where is the income side? Income side in the credit side of the profit and loss account. So we have to add it into the income, concern income, might be it will be rent, might be it will be your commission, interest. So अगर कुछ भी outstanding और अनपेड इनकम है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ऐड करनी पड़ेगी, और ये हमारा ऑलरेडी पे होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, तो इट शुड बी योर असेट. सो ये हमको आने वाला है, हमको पे नहीं करना है, तो इसके लिए ये जो सेकेंड इफेक्ट आएगा इसका, और सेकेंड इफेक्ट आएगा असेट साइड पे. सो सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन असेट साइड. नाउ द थर्ड वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड मतलब हमने जो पहले से ही पे कर चुके हैं एक्सपेंसेस वो, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर नहीं. मतलब जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हम करंट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का बनाते हैं, लेकिन उसके बाद वाला भी अगर हमने प्रीपेड कर दिया है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे. तो हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो 1 साल का बनाते हैं, अगर उसमें नेक्स्ट ईयर का भी है तो पहले हमको उसमें से वो लेस करना पड़ेगा. तो लेस फ्रॉम द एक्सपेंसेस, वेदर इट इज बिलोंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और ट्रेडिंग. सो उसमें से जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो लेस हो जाएंगे, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस होते हैं. और हमने प्रीपे किया है, हमको पे करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सामने वाले के पास हमारे पास जो पैसा रखा हुआ है उनके पास हमारा. सो इट शुड बी योर असेट. सो वी हैव टू शो इन द असेट साइड. नाउ द फोर्थ वन इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. जब डेटर्स पे डिस्काउंट होता है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट. तो डिस्काउंट जो है अगर हम डेटर्स को दे रहे हैं
तो हमारे पास से जो है पैसा कम हो जाता है, बिकॉज वी आर गिविंग द डिस्काउंट, ओके, नॉट टेकिंग द डिस्काउंट. डेटर इज आर कस्टमर, सो इट शुड बी योर एक्सपेंस, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू शो इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और जैसे ही अगर हम डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो उनकी वैल्यू जो है असेट्स में कम हो जाएगी. तो वट एवर द परसेंटेज और अमाउंट इज गिवन फॉर द डिस्काउंट, वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द डेटर्स ऑन असेट साइड. सो दैट विल बी द सेकेंड इफेक्ट. नाउ द फिफ्थ वन इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. अब हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द क्रेडिटर्स से. क्रेडिटर्स से जो है हमें डिस्काउंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारी वो इनकम हो जाएगी, बिकॉज हमको डिस्काउंट मिल रहा है. सो दैट्स वाई इट शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज सब एंट्री जो इनकम की है वो प्रॉफिट एंड लॉस साइड के क्रेडिट साइड में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. एंड it should be also reduced from the creditors on the liability side, because हमको जब creditors discount देंगे तो उनका amount कम हो जाएगा, और creditors जो है liability side होते हैं. Now the sixth is deferred revenue expenditure. ये expenditure ऐसे expenditure होते हैं जो हम पहले से ही बहुत heavy amount में इसको पे कर देते हैं, और ये जो है हर साल इनकी वैल्यू जो है रिटर्न ऑफ की जाती है. ठीक है. सो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अगर मैंने 5 इयर्स का पे कर दिया है ऑलरेडी, तो करंट ईयर का रिड्यूस हो जाएगा, और जो 4 इयर्स का प्रीपेड है वो आपका असेट साइड में दिखेगा. सो जैसे अगर मैंने 5 इयर्स का 5 लाख भर दिए हैं, तो करंट ईयर तो 1 साल का 1 लाख हुआ, राइट. सो 1 लाख जो रिटर्न ऑफ होगा दैट शुड बी डेबिटेड इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. डेबिट साइड पर आएगा रिटर्न ऑफ वैल्यू, जो 1 साल का हम रिड्यूस करेंगे, और जो बाकी के 4 लाख रुपए जो मैंने एग्जांपल दिया है उस हिसाब से जो विच इज प्रीपेड, वी हैव टू शो इन द असेट साइड, ओके, विच इज नॉट रिटर्न ऑफ, यानी जो हम रिड्यूस नहीं किए हैं अभी तक के. सो इस तरह से ये 5 लाख की एंट्रीज पूरी आ जाएगी. Now the seventh is right of further bad debts. अगर further bad debts है, so हमको we have to reduce from debtors, but we have to add into the bad debts. तो further bad debts है, तो जो हमारे पास current bad debts है उसमें add करना पड़ेगा. So we have to add to the bad debts on the debit side of the profit and loss account, क्योंकि bad debts हमारा profit and loss account में होता है. So यहाँ पर add हो जाएगा और reduce हो जाएगा from the debtor side. तो second effect will be we have to less from the debtor on the asset side. Now the eighth one is bill receivable discounted, it is dishonor. Suppose अगर bill discounted है but dishonor हो गया है, तो पहले तो यहाँ पर जो concern party है, एक bill receivable है, और जो discounted होकर भी dishonor हो गया है, तो यहाँ पर जो पैसा आने वाला था वो आया नहीं, लेकिन आने वाला कहाँ से था, डेटर के पास से था. सो यहाँ पर 2 पार्टी है, कैश और डेटर्स. सो जो पैसा हमारे पास आने वाला था वो आया नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंस, देयर इज नो इनकम. तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट में. बट इट शुड बी बोथ द इफेक्ट विल बी इन द बैलेंस शीट. हाउ इट विल बी, जैसे पैसे आने वाला था हमारे पास आया नहीं है, सो हमको इसको डिडक्ट करना है बिकॉज ये डिसऑनर हो गया है. सो वी हैव टू लेस दैट अमाउंट फ्रॉम द बैंक बैलेंस. एंड द सेकंड इफेक्ट, ये डेटर के पास से आने वाला था लेकिन नहीं आया, तो अगेन वो रिवर्स एंट्री हो जाएगी. इट शुड बी एडेड टू द डेटर्स ऑन द असेट साइड. ओके. देन द 9th one is sundry debtors include a debtor for dishonor bill and half of the amount is irrecoverable. यहाँ पर जो है डेटर्स के अंदर इंक्लूड होगा डिस्काउंट डिसऑनर बिल, मगर हाफ ऑफ अमाउंट जो है वो रिकवरेबल होगा. तो इसमें क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर जो है डेबिट साइड पे एडिशन आपको बताना पड़ेगा बैड डेब्ट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. ठीक है. जो हाफ अमाउंट आया है, जो नहीं रिकवर हुआ है, और जो दूसरा जो इसका इफेक्ट आएगा दैट शुड बी डिडक्ट ऑन द एज अ बैड डेट फ्रॉम द डेटर साइड ऑन असेट साइड. ओके. मतलब डेटर से जो है हमको उसको लेस करना पड़ेगा असेट साइड में. द नेक्स्ट इज 10th one, bill receivable dishonor is remain to be adjusted. So bill receive हुआ है बट डिसऑनर इज रिमेन टू बी एडजस्टेड, मतलब हमको इसको एडजस्ट करना अभी बाकी है. ठीक है. सो अगेन यहाँ पर जो है बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ और इसको अभी तक के हमने एडजस्ट नहीं किया, तो यहाँ पर जो है 2 पार्टीज होती है, एक होगा बिल रिसीवेबल और एक होगा डेटर्स. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और ट्रेडिंग में जो है इसका इफेक्ट नहीं आएगा. दोनों इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में बताने पड़ेंगे. तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा डिडक्ट फ्रॉम बिल रिसीवेबल ऑन असेट साइड.
क्योंकि ये डिसऑनर हो गया है बिल, तो हम इसको लेस कर देंगे बिल रिसीवेबल से और ऐड करेंगे डेटर्स में, ऐड टू डेटर्स ऑन asset side. Okay, so that will be the 10th adjustment. Now 11th one, good purchase remain to be recovered through included in closing stock. यहाँ देखिए कि गुड परचेज किया है मगर हमने जो है इसको अभी तक के रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब दिस इज अनरिकॉर्डेड परचेज, यानी कि परचेज करके भी हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड इनटू द परचेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. हमको इसको परचेज में ऐड करना है. हम परचेज किससे करते हैं? क्रेडिटर से, सप्लायर से. सो इसलिए दूसरा इफेक्ट जो आएगा बैलेंस शीट में, हमको लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में इसको ऐड करना पड़ेगा. Now the 12th one, goods sold are included in closing stock since it was not delivered. ये जैसे अनरिकॉर्डेड परचेस था 11th वाला, वैसे 12 जो है अनरिकॉर्डेड सेल, मतलब हमने सेल किया मगर अगेन उसका रिकॉर्ड नहीं किया गया है क्लोजिंग स्टॉक में, तो हमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो यहाँ पर देखिए सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो पहले हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, सो जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ 12th है, गुड्स सोल्ड आर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक सिंस इट वाज नॉट डिलीवर. ओके, जो गुड्स सोल्ड किया है वो कहाँ पर इंक्लूड है? क्लोजिंग स्टॉक में है और वो अभी तक के डिलीवर नहीं हुआ है. सो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू बी रिड्यूस बाय ट्रेडिंग अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. जो कॉस्ट वैल्यू है वो जो है आपके क्लोजिंग स्टॉक से रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम इसको कम करना पड़ेगा जो मिस्टेकनली इंक्लूड है इसमें. और सिमिलरली दूसरा इफेक्ट जो होता है क्लोजिंग स्टॉक का, वो भी हमको रिड्यूस करना पड़ेगा एसेट साइड में. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेल्स इंक्लूड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. अगर सपोज हमने कोई गुड्स सेल किया है सेल और रिटर्न बेसिस पर, ठीक है, जैसे अगर आप जितना माल बेच सकते हो हमारा बेचिए, अदरवाइज हमारा माल जो है हमको रिटर्न कर देना. अगर आपने ऐसा कुछ बेसिस पे सेल किया है तो उसकी क्या एंट्री है? सो यहाँ पर देखिए 4 इफेक्ट आएंगे. क्यों? क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है अपना गुड्स तो कॉस्ट पे करती है, लेकिन जब कस्टमर वही गुड्स मार्केट में जाता है तो वो गुड्स जो है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है. क्लियर? नाउ पहला जो ऑर्गेनाइजेशन क्लियर करेगी वो किस तरह से होगा? देखिए सेल और रिटर्न बेसिस पे जो सेल प्राइस होगा, देखिए अगर सेल नहीं हुआ तो उतना सेल हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो हमको वो उतना अमाउंट सेल से रिड्यूस करना पड़ेगा और हम क्या यूज करेंगे? सेलिंग प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट से. ठीक है, जो सेल में से हम रिड्यूस करेंगे. और उसी तरह से जब सेल कम हो जाएगा तो हमारे पास स्टॉक आ जाएगा वापस हमारे गोडाउन में, तो क्लोजिंग स्टॉक में ये ऐड हो जाएगा, मगर यहाँ पर जो है हम उसका कॉस्ट प्राइस लिखेंगे. तो ऐड टू द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द कॉस्ट ऑफ सच गुड्स. सो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा बिकॉज वो माल बिका नहीं, अगेन हमारे गोडाउन में आ गया, मगर ये कॉस्ट प्राइस पे होगा. सिमिलरली सेकेंड इफेक्ट जो है हमारा बैलेंस शीट में आएगा. सेल हमारा नहीं हुआ है, सो हम सेल करते हैं कस्टमर को, तो डेटर्स की वैल्यू ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, तो वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स. ठीक है, ऑन असेट साइड ऑफ द सेलिंग प्राइस. यहाँ पर भी डेटर्स के लिए हम सेलिंग प्राइस यूज करेंगे. और दूसरा इफेक्ट आएगा ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑन द असेट साइड. जैसे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हुआ, वहां पर असेट साइड में भी ऐड होगा, बट इट शुड बी द कॉस्ट प्राइस, रिमेंबर दैट. तो इस जो ये रिटर्न बेसिस का जो एडजस्टमेंट होगा उसमें 4 इफेक्ट आएंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो सेल से रिड्यूस होगा और डेटा से रिड्यूस होगा दैट इज ऑन सेल प्राइस, और जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जो वैल्यू ऐड होगी दैट शुड बी ऑन कॉस्ट प्राइस. नाउ गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, दैट इज अ ड्रॉइंग. मैंने कहा था आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ड्रॉइंग क्या होता है. अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर जाते हैं, यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसमें जो है उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे. तो देखिए गुड्स अगर किसी तरह से भी जा रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसका पहला इफेक्ट होगा हमको डिडक्ट. 2 इफेक्ट हो सकते हैं, या तो हमको परचेज से कम करना पड़ेगा वो वैल्यू, सो लेस फ्रॉम द परचेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और यू कैन राइट इन अ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. तो बेटर यही रहेगा कि आप क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के आप लिख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा. So when goods will come, it should be debit side on the trading account. When goods will go out by the selling, by any other reason, so we have to write on the credit side of the trading account. And now the second effect
यहाँ पर जो है ड्राइंग है, तो ड्राइंग जो हमारी रहेगी वहाँ पर जो ड्राइंग रहेगा उसी में ऐड हो जाएगा। जो ड्राइंग हमारी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से लेस होती है, सो जो भी हमारी ड्राइंग रहेगी प्रीवियस उसमें ऐड हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली इसको कैपिटल से लेस कर देंगे लाइबिलिटी साइड में। दैट विल बी द सेकेंड इफेक्ट। नाउ द 15th वन इज गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। देखिए कंपनी कभी भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो फ्री सैम्पलिंग करती है, तो ये एक, और इससे जो है इनको कोई कमाई नहीं होती, बट इट इज टाइप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट के दैट वी आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट्स। सो जब गुड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्री सैम्पलिंग के लिए, तो ऑफकोर्स द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बेयर द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ये एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी है और साथ साथ में हमारा गुड्स भी जा रहा है। मैंने अभी कहा था अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन गुड्स आर गोइंग आउट, सो या तो आप परचेस से लेस कर दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में, या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लीजिए, दैट विल बी द सेम। एंड द सेकेंड इफेक्ट विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। मैंने अभी कहा इट इज अ टाइप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। तो इट विल बी टू इफेक्ट, फर्स्ट ऑन ट्रेडिंग, सेकेंड ऑन डेबिट, और यहाँ पर इसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, सो वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन द बैलेंस शीट। Now 16 is loss of goods by fires which is not insured। मतलब ऐसा गुड्स जो इंश्योरेंस जिसका नहीं हुआ है और लॉस हो गया है फायर के थ्रू, तो यहाँ पर ऑफकोर्स इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर भी देखिए गुड्स जा रहा है, तो अगेन द फर्स्ट एंट्री विल बी द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट फुल अमाउंट, और ये एक तरह का एक्सपेंस है, अनसर्टेनिटी हुआ है, सो ऑफकोर्स ये एक्सपेंसेस भी बेयर करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। इसके लिए इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, वी हैव टू शो on the debit side of the profit and loss account as a loss by fire। अगेन यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। 17 is loss of goods by fire in insurance company admitted the claim। सपोज यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गुड लॉस बाय फायर विच इज नॉट इंश्योर, और यहाँ पर मैं अभी आपको बता रही हूँ गुड्स लॉस बाय फायर विच इज इंश्योर, मतलब इसका इंश्योरेंस है। सो यहाँ पर इसके 3 इफेक्ट्स होते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर कंपनी ने इंश्योरेंस कराया है सपोज 5 लाख रुपीस का गुड्स का, लेकिन जिस दिन आग लगी उस दिन सपोज अगर 6 लाख का गुड्स रखा हुआ है अंदर और पूरी तरह से बर्न हो गया, जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 5 लाख का ही देगी, बिकॉज आपका पॉलिसी 5 लाख का है। तो जो 6 लाख का गुड लॉस हो गया, तो मतलब कंपनी को 1 लाख का लॉस होगा। तो ये 6 लाख का लॉस हुआ, उसमें से 5 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी और 1 लाख जो है 1 लाख कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। तो इसके 3 इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट, जो भी लॉस, जो भी गुड्स जला है, पूरी तरह से चला गया गुड्स 6 लाख का, तो उसकी एंट्री आएगी क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। वी हैव टू शो द गुड लॉस बाय फायर, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट, जो 1 लाख का लॉस हुआ है उसकी एंट्री आएगी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो एक्चुअल लॉस होगा कंपनी को 1 लाख का, उसकी सेकेंड एंट्री आएगी। और थर्ड इफेक्ट जो हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखेगा, इंश्योरेंस क्लेम हमको जितने का भी मिलेगा उतना, तो शो ऑन द असेट साइड। जैसे 5 लाख रुपया अगर हमको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, वी हैव टू राइट दैट 5 लाख रुपीज इनटू द असेट साइड। नाउ द 18th वन इज क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स नॉट रिकॉर्डेड। अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है असेट का और हमने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, सो इसकी एंट्री क्या आएगी? तो हम असेट जो है हमारे सप्लायर से लेते हैं, सो यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्सपेंस बेयर नहीं होगा, तो इट विल नॉट कम इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर जो असेट हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो वी हैव टू ऐड इनटू द असेट साइड। हमको असेट साइड पे इसकी एंट्री बतानी पड़ेगी कि हमारा नया असेट आया है। और दूसरा जो सप्लायर की एंट्री होगी, जो हमको क्रेडिट बेसिस पे हमने लिया है, वी हैव टू पे फर्दर, सो उसका एंट्री जो है लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा फॉर द क्रेडिटर्स। सो शो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द क्रेडिटर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 19th वन, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। देखिए अगर हम कोई नई मशीनरी लाते हैं तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, हमारी कंपनी में इसको फिट करना पड़ता है, देयर आर इन पार्ट्स में भी। सो उसके लिए हमको एक स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है जो इंस्टॉल करे, तो उसका भी हमको चार्जेस भरना पड़ता है। तो इट शुड बी रिमेंबर दैट इज द
वी हैव टू ऐड दिस एक्सपेंसेस इनटू द मशीनरी अकाउंट, बट ये लोगों ने यहाँ इसके एडजस्टमेंट के हिसाब से ये कहाँ पर रख दिया है, उन्होंने इसको ऐड कर दिया वेजेस अकाउंट में, विच इज रॉन्ग. सो उसको किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे? तो पहले हम रॉन्गली जब उसको डेबिटेड किया गया है वेजेस अकाउंट में, तो वहां से हमको उसको निकालना है. सो फर्स्ट वी हैव टू डिडक्ट द वेजेस फ्रॉम वेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और इसको हमको कहाँ डालना है? मशीनरी में. मशीनरी इज असेट, तो असेट में ये ऐड हो जाएगा. सो वी हैव टू ऐड टू द मशीनरी ऑन द असेट साइड. Now the next is legal charges paid for the acquisition of property debited to the legal expenses. अगर legal expenses पे किया है कोई प्रॉपर्टी खरीदने के वक्त, जैसे हमको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है अगर हम कोई प्रॉपर्टी ले, तो दैट इज अ लीगल एक्सपेंसेस एंड दैट शुड बी एडेड टू द प्रॉपर्टी ओनली. वो प्रॉपर्टी का ही एक्सपेंस माना जाएगा, इट नॉट बी अ लीगल एक्सपेंस. लीगल एक्सपेंस जैसे ये हो जाएगा कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा अगर हम एग्रीमेंट बना रहे हैं और उसका पैसा जो है बनाने का पैसा हम अगर लॉयर को दे रहे हैं, तो दैट इज अ लीगल एक्सपेंस. बट इट नॉट बी अ लीगल एक्सपेंस बिकॉज इट इज अ हेवी अमाउंट फॉर द रजिस्ट्रेशन. दैट्स वाई जो लीगल एक्सपेंसेस में ये डेबिट है उसको लेस कर देंगे लीगल से, क्योंकि ये रॉन्गली वहां पर डेबिट हुआ है. तो जो इसको रेक्टिफाई करेक्ट करना पड़ेगा, सो इसके लिए लेस फ्रॉम द लीगल एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर भी लीगल एक्सपेंसेस है, और उसको प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे. असेट साइड हमने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी हो, सपोज बिल्डिंग खरीदी हो, so like that, so we have to add to the property on the asset side. Now the 21th is expenses debited to the asset account. ऐसे expenses जो wrongly debit किए गए हैं asset account में से, तो उसको asset account में से निकाल कर expense account में डालेंगे. So add to the expense on the debit side. जो expense कहीं भी हो सकता है, trading, profit and loss और profit and loss appropriation में उसको add करेंगे, और asset से हमको निकालना पड़ेगा, तो we have to deduct from the asset side. Okay. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर पार्टनर्स कैपिटल पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो वो वैल्यू जो है डेबिट साइड में आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, या और दूसरा इफेक्ट जो आएगा उसका वो आएगा एड टू कैपिटल ऑन लाइबिलिटी साइड. मगर अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर भी आ सकती है. दैट इज अ डिफरेंट इफ यू मेंटेन अ डिफरेंट कैपिटल अकाउंट. नाउ 20,000 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, ये हमारी इनकम हो जाती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस हो जाता है. तो एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्या होती है? क्रेडिट. सो ड्रॉइंग का जो पार्टनर्स हम इंटरेस्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, इट शुड बी द इनकम टू द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स व्हाई इट शो द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और सेकेंड इफेक्ट आएगा डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड. ये जो ड्राइंग में जो है ड्राइंग का ही पार्ट होता है, इसके लिए अगेन ये कैपिटल से लेस होगा. अगर आप कैपिटल सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा. 24th इज अ सैलरी टू अ पार्टनर. इफ पार्टनर इज डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे, और वो जो सैलरी दी जाती है उसकी एंट्री क्या होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो सैलरी इज एक्सपेंस, सो इट शुड बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है ये क्रेडिट हो जाएगी या ऐड हो जाएगी कैपिटल में. ठीक है, अगर आप सेपरेट कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी, अगर नहीं बना रहे तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा. 25th इज क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज द इजी एडजस्टमेंट. एवरी फाइनल अकाउंट हैज दिस एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड वी हैव टू शो द असेट साइड. 26th द मैनेजर इज अलाउ द कमीशन 10%. मैनेजर पर हमको 10% कमीशन अगर देना है सपोज मैनेजर को, तो ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द नेट प्रॉफिट. तो वॉट एवर आर नेट प्रॉफिट, पहले हम जो है नेट प्रॉफिट में से उनका कमीशन निकाल के उसको डेबिट साइड में शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और ये हमको पे करना है, इट विल बी हमको बाद में पे करना है, तो इट शुड बी अ लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी साइड पे भी हम इसको शो करेंगे. सेकेंड इफेक्ट. नाउ द 27th इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. यहाँ पर मैंने दो पॉसिबिलिटी बताई है. अगर ओल्ड रिजर्व इज लेस देन द न्यू आरडीडी, द सम ऑफ द न्यू आरडीडी एंड बेड डेब्ट्स, तो हम इसको डेबिट साइड में करेंगे. डेबिट साइड में क्या करेंगे? बेड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस आरडीडी. और जो सेकेंड इफेक्ट आएगा जो हमारा न्यू आरडीडी का, वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द डेटर्स. बट अगर सपोज ओल्ड आरडीडी इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द न्यू आरडीडी एंड बेड डेब्ट्स, देन इसका इफेक्ट हमको क्रेडिट साइड पे पूरा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा. द कैलकुलेशन विल बी
ओल्ड आरडीडी माइनस बेड डेब्ट्स एंड माइनस न्यू आरडीडी, और न्यू आरडीडी जो है हमारा उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा फ्रॉम वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द डेटर्स. ये हमारा ओल्ड आरडीडी और बेड डेब्ट जो है ट्रायल बैलेंस में रहता है, सो इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट बट न्यू आरडीडी विल बी द एडजस्टमेंट. बट जब ये तीनों अवेलेबल रहेंगे तो हमको ये पूरे कैलकुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा. सो आई होप बाय दिस एक्सप्लेनेशन यू विल गेट द होल आइडिया अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ द फाइनल अकाउंट. Please learn it properly and do it properly. By this you can do your final account comfortably. So thank you everyone, and by that time stay home, stay safe, be happy. Bye.